ہم دوبارہ زمین والوں کے درمیان پہنچے تو ہمیں وہ سب اجنبی لگیں گے۔ لڑکیوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے پروفیسر کے ساتھ اس غار سے باہر نکل آئیں اور چند ساعت کے بعد وہ دوبارہ اس طلسم نما آئینہ خانے میں داخل ہو گئے جس کی کچھ عجیب تفصیل بتائی تھی اس نے۔ تب پروفیسر نے اپنے حساب سے سورج کا تعین کیا اور کافی غور و خوض کے بعد سالانوس کی رہنمائی میں اپنے ماضی کے طرف منہ پھیر کر اس کا رخ کیا اور مضبوطی سے انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے، اس معنی جس طرح اس نے کبھی سالانوس کے دور کی کہانی سنائی تھی، اور آئینے سے منعکس ہونے والی شعاؤں میں انہوں نے اپنے وجود کو تحلیل ہوتے محسوس کیا، یوں کہ وہ ساکت تھے لیکن جنبش کر رہے تھے۔ ان کے بدن ہلکی ہوا کی مانند اور اس قدر ہلکے ہو گئے تھے وہ کہ خود اپنی ذات پر تعجب تھا انہیں۔ تب اس کی آواز سنائی تھی۔ جہاز کے سفیر کی تیاریاں مکمل ہو گئی تھی۔ خود زیوداس مجھے حکیم کے ساتھ جہاز پر اطلاع دینے آیا تھا اور اس نے اپنے نائب خاص کو اور جہاز کے کپتان کو میرے بارے میں خصوصی ہدایات دیں۔ سمندر کی پہلی رات میرے لیے اجنبی نہیں تھی، لیکن شمانہ کو آسمان پر چمکتا ہوا چاند اور حد نگاہ پھیلے ہوئے سمندر کو دیکھ کر کچھ عجیب احساس ہو رہا تھا، اور یہ احساس اس کے چہرے سے نمایاں تھا۔ اس وقت بھی وہ عرشہ پر میرے نزدیک کھڑی تھی، شاید میرے وجود کو بھی فراموش کر چکی تھی۔ دفعتاً وہ میری جانب بڑھی۔ سبوتا، کیا تم ساری زندگی میرے ساتھ رہو گے؟ تم کہیں مجھ سے دور تو نہیں ہو جاؤ گے؟ یہ خیال تمہارے ذہن میں کیوں آیا شمانہ؟ میں نے پوچھا۔ بس یوں ہی، زمین و آسمان کی گردش نے نہ جانے کون کون سے رخ اختیار کیے ہیں۔ میں اپنی حیات کے اختصار کے بارے میں سوچ رہی تھی، کہیں اس کے انداز میں خوف تھا۔ تبھی داستان گو خاموش ہو گیا۔ یوں لگا جیسے شمانہ کی قربت میں ڈوبے ہوئے اسے اچانک کوئی اور خیال آ گیا ہو۔ اسے چونک کر اپنے نزدیک بیٹھے ہوں کو دیکھا اور کھوئے کھوئے انداز میں دیر تک دیکھتا رہا، جیسے کوئی بھولی بسری بات یاد کر رہا ہو۔ پھر وہ بری طرح چونک پڑا۔ تم پروفیسر، تم اور یہ دونوں لڑکیاں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیوں کر ممکن ہے؟ میں گزرنے والا ہوں، ماضی حال مستقبل سب کچھ میرا ہے۔ تم نے ماضی کے اوراق کیوں کر پلٹ دیے؟ میں نے حال سے مستقبل میں چھلانگ لگائی تھی۔ میں نے دانشوروں کی قرب میں صدیوں کا ماضی اور صدیوں کا مستقبل پا لیا تھا۔ کسی دوسرے کے لیے کیسے ممکن ہے؟ تمہاری رہنمائی میں ایک چھوٹی سی بات ہے ناممکن سے ممکن بن گئی، لیکن یہ کیوں کر ممکن تھا کہ ماضی میں کسی اور کی مدافعت ہو سکے؟ لیکن تم وقت ہو اور وقت کی کہانی ازل سے ابد تک جاری رہے گی۔ سو تم چونکنے والوں میں ہو، جبکہ اس وقت کوئی نہیں چونکا۔ جب تم نے ماضی میں خود کو منوایا، ہاں تم ہمیں مستقبل میں لے گئے اور پھر ساری کہانیاں ختم ہو گئی، لیکن ایک کہانی باقی رہ گئی میرے دوست، صرف ایک کہانی۔ کون سی کہانی؟ اس نے پوچھا۔ پروفیسر خاور کی کہانی، اس کی ان دونوں بیٹیوں کی کہانی جو وقت کے علم میں قید ہو گئے تھے، اور پھر قید انہیں ایسی بھائی کہ انہوں نے زندگی کی تمنا چھوڑ دی اور تمہاری چاہت میں تڑپنے لگے، اور پھر سالانوس کے دانش کدے میں ہماری رہنمائی ہوئی اور ہم نے ماضی کا ایک ورق پکڑ لیا۔ یوں تم ہمیں دوبارہ مل گئے۔ سنو دوست، ہم فانی ہیں، جس طرح لاتعداد بستیاں تمہارے قرب میں زندگی گزار کر فنا ہو گئیں، تو ہم بھی اس کے خواہش مند ہیں۔ وہ دنیا کے آخری سرے تک جا پہنچے ہیں، لیکن تمہارے قرب کی خواہش ہے ہمیں پھر اپنے وجود میں سم کر لو، اور ہم اس لیے پہنچے ہیں تم تک کیونکہ ہمارا وجود اب ہماری دنیا کے ناقابل ہے۔ ہمیں پھر انہی کہانیوں میں سمو لو، اور اتنے عرصہ کے قرب کے بعد ہم اتنا حق ضرور رکھتے ہیں کہ تم سے یہ بات منوا لیں۔ اس کے انداز میں تعجب تھا، اور ایسی تعجب بھری نگاہوں سے اس نے فرزانہ اور فروزہ کو دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ لیکن تم تو اپنی دنیا کے خواہش مند تھے۔ ہاں، لیکن جب وہ دنیا دیکھی تو ہمیں بڑی اجنبی لگی۔ ہم نے تو علم کو تمہاری آنکھوں سے دیکھا تھا۔ فرزانہ نے گہری سانس لے کر کہا، تعجب ہے میری کتاب میں ایک انوکھے باب کا اضافہ ہو رہا ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس تحریر کو کس نام سے لکھوں گا۔ تاہم تم یہ بتاؤ کہ اب میں تمہارے لیے کیا کروں کہ میرا سکوت ممکن نہیں ہے؟ تم گزرتے رہو جس مانند گزرتے ہو، یوں ہمیں اپنی زندگی کی حوث نہیں ہے، اور ہم تمہارے وجود کے ساتھ بوڑھے ہونا پسند کریں گے۔ اور ہماری کہانی کا آخری باب تم یوں لکھنا کہ بالآخر وہ بوڑھے ہوئے اور انہوں نے انہی غاروں میں موت پائی جہاں انہوں نے صدیوں کی کہانی صدیوں کے بیٹے کی زبانی سنی تھی۔ تب پھر وہ مسکرا کر بولا، لیکن اب میں تمہیں کون سی کہانیاں سناؤں گا؟ اس کے انداز کی لچک نمایاں تھی۔ تم نے کہا تھا ابھی تو اس کتاب کے بے شمار اوراق باقی ہیں پروفیسر، ان میں وہ اوراق بھی ہیں جن میں مستقبل تحریر ہے، اور وہ اوراق بھی ہیں جنہیں میں ابھی تحریر کروں گا۔ اگر میں یہ اوراق الٹ دوں
तो तुम्हारे दिलों की धड़कनें बंद हो जाएं। सो हमें माजी की कहानियां सुनाओ ना, वो कहानियां जो तुम्हारी दास्तान में नहीं आ सकी थी, क्योंकि तुम्हारी आंखों में सदियां समाई हुई हैं और सदियां इतनी मुख्तसर नहीं होती जितनी मुख्तसर तुम्हारी दास्तान थी। प्रोफेसर मेरे दोस्त इल्म दानिश के बरसते पानी में नहाने वाले रुए जमीन से इस कदर बेनियाज हो जाते हैं कि गर्दिश फलक उनके लिए बेमानी है। सांसों की जंजीर से उनका कोई वास्ता नहीं रहता। बदन का बोझ रूह पर गिरा हो जाता है और वो बेचैन हो जाती है इस फरसूदा निज़ाम जिंदगी से जो यकसा है और नमूद हयात से मौत की आगोश तक का सफर तब्दील करना चाहती है। और ये सदियों का तजर्बा है मेरा। सो तुमने दानिशमंदी से मुझे माजी में तलाश कर लिया है कि हाल से तो मैं गुजर चुका हूँ, और तुमने उस कौल की गर्दन दबाई है कि गया वक्त हाथ नहीं आता। अब इस मिसाल को यूं कहो कि गया वक्त हाथ नहीं आता, लेकिन इससे माजी में मुलाकात की जा सकती है और माजी तुम्हारे ज़हनों में कैद है, बशर्ते कि तुम इसे दिमाग के खुलियों में से ढूंढ निकालो। माजी इस वक्त जिंदा है जब तक तुम या तुम्हें जानने वाले। आओ प्रोफेसर, इन्हीं कहानियों की वादी में चलो कि दास्तान गोई का लुत्फ इसी में है, लेकिन एक शर्त के साथ। कैसी शर्त? प्रोफेसर ने खुशी के आलम में पूछा। तुम जान चुके हो कि माजी, हाल और मुस्तकबिल के राज वाहें सरबस्ता मुझ पर आया है, वो कहानियां जिनका वजूद है मेरी जात में पनहा, और इन कहानियों में मेरा एक किरदार रहा है। सो इस बार कहानियों का इंतखाब तुम करोगे। हाँ, सुनाने वाला मैं हूँ, लेकिन हमारे ज़हन इतने कुशादा नहीं है कि हम माजी के वो किरदार तलाश करें जो आम निगाहों में न हो। जो तसव्वुर भी तुम्हारे ज़हन में उभरे। उसने मुस्कुरा कर कहा, हमें तो तुम तक दोबारा पहुंच जाने की खुशी है, और यकीन करो कि इस दौर के लोग हमें इतने अजनबी महसूस हुए कि हम एक लम्हा उन्हें बर्दाश्त न कर सके। दुनिया इस रुख पर चल रही है जिसकी तुमने निशानदही की थी, और हम जानते हैं कि इंसान का ये अंदाज उसे कहाँ ले जाएगा। गुजारा करना एक नामुमकिन सा अमर है। बाकी रही कहानियों की बात, तो इस तवील सफर में तुम्हारा हर लम्हा एक कहानी होगा। लाखों किरदार बिखरे हुए तुम्हारी जात में, और उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तब उसने नीमबाज आंखों से उन्हें देखा और हंस पड़ा। लेकिन तुमने मुझे खूब तलाश किया, और सलानूस के दानिशकदे ने भी तुम्हारी अनोखी रहनुमाई की, और इसमें तुम्हारी जहानत कार फरमा है। अब सुकून की उन्हीं वादियों का रुख करें, लेकिन इससे कबल तुम्हारी ज़ियाफत जरूरी है। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए आवे सुकून ले आऊं। वो उठा और निगाहों से ओझल हो गया। यूं लगता है जैसे वजूद कायनात सिर्फ एक कहानी हो जो उसके होंठों से उभर रही हो। क्या इन दास्तानों के सिवा और कोई चीज इतनी दिलकश है? फरोजा ने पूछा। हरगिज नहीं, इसकी जात में कायनात छुपी हुई है, और वो जो अपने बदन की चादर का कोई हिस्सा उठाता है तो एक नई कहानी सर उभारती है। काफी देर हो गई थी उसे गए हुए। वो मुख्तलिफ बातें करते रहे और उसके इंतजार में इन्हें बेचैनी होने लगी तो वो आ गया। होठों पर वही दिलकश मुस्कुराहट सजाए, और फिर उसने सुराही और गिलास उनके सामने रख दिए। तुम इस शरबत लतीफ से ना आशना न होगे। शरबत हयात तुम्हारा पसंदीदा शरबत, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और प्रोफेसर ने बेख्तियार सामने रख के बर्तन उठा लिए। हाँ, इन्हीं सारी चीजों की तलाश ने तो हमें दीवाना कर दिया था। आवे सकूं के चंद गिलास पीकर वो खुद को इतना हल्का फुल्का महसूस करने लगे कि बयान से बाहर है। यूं लगता था कि वजूद से कुछ खोया हुआ पा लिया हो। इसकी आंखें ख्वाब में डूब गई थी। तब उसकी आवाज उभरी। मुझे वापसी में देर इसलिए हो गई कि मैं अपनी किताब के इन औराक पर निगाह डाल रहा था कि जो तुम्हारी निगाहों से ओझल रहे थे। इन औराक की कहानियां तुम नहीं सुन सके थे। मिसाल के तौर पर राजा कश का, क्या तुमने उसकी दास्तान सुनी? नहीं, ये कौन था? फरोजा बेख्तियार बोल पड़ी। गढ़ मुक्ति का राजा। और कहानी उसकी यूं थी कि मैं इन दिनों ज़हनी पुज़मुर्दगी का शिकार था, यानी इन्हीं अयाम में से गुजर रहा था जब मेरे ऊपर काहुलत तारी हो जाती है और मैं सुकून की जगहों का मुतलाशी होता हूँ, और यह जगह मेरी पसंद के मुताबिक होना जरूरी होती है ताकि नींद का लुत्फ आए। लेकिन मेरी लातादाद दास्तानें शाहिद हैं कि वक्त को करार कहाँ। जमीन के सीने पर इंसान का वजूद एक लम्हे में लाखों कहानियां तरतीब देता है, और इनमें से हर कहानी मेरे वजूद को छूती गुजरती है। यूं सफर में था कि एक सादा सी मासूम सी बस्ती पर निगाह पड़ी। चारों तरफ खेतों में हरियाली लहरा रही थी। सब्ज रंग के लहलाते खेतों में लड़कियां नजर आ रही थीं। ये रंग बिरंगे लिबासों में मलबूस किसान लड़कियां थीं जो खेतों में काम कर रही थीं। खुशखुरम सुर्खो सफेद जिंदगी से भरपूर इनकी हंसी के जलतरंग कानों में रस खुल रहे थे, और इन कहकों की गुफ्तगी कदम रोके ले रही थी। लेकिन ऐसा ना हो कि फिर किसी उलझन में शिकार हो जाऊं कि जहां इंसानी वजूद होता है वहां उलझनें जरूर होती हैं। सो पलट गया मैं उस तरफ से, लेकिन प्रोफेसर मेरे इल्म के वजूद को कभी नजरअंदाज नहीं किया, और यही मेरी कमजोरी थी जिसका मैं शिकार था। हर शय मेरे लिए दिलकश होती थी, और अदवार ने यही बताया था कि इल्म की किताब में जितने सफ़ात तहरीर हो सकें
वो कायनात के सरमाए की हैसियत रखते हैं और ये सरमाया कुदरत की अमानत है जिसमें खयानत मुमकिन नहीं। खेतों से दूर का रुख इख्तियार किया था मैंने और सोचा था कि इस बस्ती से बचकर निकल जाऊं, लेकिन रास्ते में गुनगुनाती हुई एक नदी ने कदम रोक लिए और सोचा कि इसके किनारे बैठकर थोड़ी देर आराम करूं। ऐसी शफाफ नदियां बेहद हसीन होती हैं, लेकिन फिर भूल गया कि नदी बस्ती से ज्यादा दूर नहीं है और यहाँ भी वजूद इंसानी पर मुमकिन है। किनारे इस नदी के सरसब्ज घास से पुर थी, है आराम के लिए लेट गया। पानी की गुनगुनाहट बड़ी सुकून बख्श थी। नर्म रेत की ठंडक ने वजूद को बड़ा सरूर बख्शा, लेकिन कदमों की आड़ ने चौंका दिया और मैं गर्दन उठाकर देखने लगा। लकड़ी की खड़ाओं पहने ऊपरी बदन से नंगे वजूद को देखकर मैं उठ गया, लेकिन मेरी आंखों ने उसके चेहरे की नरमी और तमतमाहट का जायजा लिया और फैसला किया मैंने कि जरूर ये कोई साहिब इल्म है। और होंठ वाह हो गए उसके मुस्कुराहट के अंदाज में और उसने दोनों हाथ जोड़कर माथे पर लगा दिए। मैं खामोशी से उसे देखता रहा और तब उसकी गंभीर आवाज उभरी। रशियों और मनियों के चमत्कार निराले होते हैं, फिर वो अपने माथे की चमक कहाँ छुपा पाए। हाँ महाराज, वो चमक जिसमें सितारे बोलते हैं। आज्ञा दे तो थोड़ी देर के लिए पास बैठ जाऊं। तुम लोग कहाँ पीछा छोड़ोगे, बैठो, मैंने उठाए हुए लहजा में कहा और उसकी मुस्कुराहट के खलूस में कोई तब्दीली ना आई, मगर मेरे अल्फाज तलक थे। वो बैठ गया और मेरे चेहरे की जानिब देखने लगा। संसार दुखों की पोट है, मगर ये ना भूलो महाराज कि भगवान ही ने इसे बनाया है। जिस भगवान की तलाश में तुम सरगर्दा हो, उसके बनाए हुए इंसानों से भागोगे तो भगवान को कैसे पाओगे। खूब तो क्या तुम गयानी हो, मैंने मुस्कुरा कर कहा। नहीं महाराज, कहाँ गयानी और कहाँ मैं तो बस गवैया हूँ, भगवान के गुण गाता हूँ, बस नाम मेरा सुखराज है। लोग सवाली सुखराज कहते हैं। ज्योतिष विद्या से बड़ा प्रेम है मुझे और सारा जीवन इस तलाश में बिताया है, पर किसी गयानी ने तवज्जो नहीं की और चाप कर रहा था दरिया के किनारे इस बात का कि किसी महान गयानी से संबद्ध हो जाए। और आज इस जाप का आखिरी दिन था और महाराज दरिया के किनारे आने वाले तुम पहले मंच हो। चुनाचे तुम मेरी गर्दन पकड़ लो और उस वक्त तक दबाते रहो जब तक मैं तुम्हें गयान देने का इकरार न कर लूं। मैंने कहा, नहीं महाराज, मेरी मजाल के मैं गर्दन पकड़ूं, मैं तो दास हूं और बस सेवा करना चाहता हूं, अगर मन चाहे तो मुझे कुछ दे दें। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे भाई, दरिया के किनारे की यह जगह बेहद खूबसूरत थी, थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक गया, इसकी इतनी बड़ी सजा तो ना दो। मैं सुकून की तलाश में हूँ, इन्हीं पहाड़ों में कोई मुनासिब जगह देखकर सो जाऊंगा और दास जीवन भर ज्योतिष गयान की आस में तड़पता रहेगा। उसने दर्द भर लहजे में कहा, स्वामी सुखराज जी, तुम्हारे जाप में कुछ गड़बड़ रह गई है या फिर इसका आखिरी लम्हा पूरा नहीं हुआ। जल्दी से जाओ और जाप के आखिरी लम्हात पूरे कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि जरा सी भूल में सब कुछ खो बैठो। मैं तो मुसाफिर हूँ, थोड़ी देर बैठकर यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। तब स्वामी सुखराज ने चौंक कर मुझे देखा, यूं लगता था जैसे वो मेरी बात पर यकीन करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, ये सितारे तो झूठ नहीं बोलते महाराज, बेशक सितारे झूठ नहीं बोलते, लेकिन ओ देखो, तुम्हारा मतलूब वो तो नहीं है। मैंने एक और वजूद को दरिया के किनारे देखा, ये भी कुछ साधु ही था, हाथ में तारा संभाले हुए वो बड़े मस्त अंदाज में चला रहा था। हे भगवान, मेरी सहायता कर, सुखराज ने परेशान लहजे में कहा और फिर उस साधु की तरफ देखने लगा। साधु दरिया के किनारे बैठकर अपना तारा एक तरफ रखकर चुल्लू से पानी पी रहा था। सुखराज स्वामी गर्दन हिलाते हुए उसकी तरफ बढ़ गए और मेरे ज़हन में दिलचस्पी पैदा हो गई। मैं इन दोनों को देखने लगा और मेरा दिल चाहा कि करीब से इनकी गुफ्तगू सुनूं। फिर मैंने खुद को संभालने की कोशिश की कि फजूल उलझनों में पड़ने से क्या फायदा, बेहतर यह है कि जल्दी से यहाँ से आगे बढ़ जाऊं। लेकिन प्रोफेसर, वक्त की गर्दिश भी किसी के इशारों की पाबंद होती है। मैं अपने तजस्सुस, अपनी दिलचस्पी को नहीं दबा सका और इन दोनों की तरफ चल पड़ा। स्वामी सुखराज साधु के पास पहुंच गए थे और उसकी पुष्ट पर पहुंचकर उसके फारिग हो जाने का इंतजार करने लगा। साधु अपनी गर्दन और बाल भिगो रहा था और फिर उसने सुकून की गहरी गहरी सांसें ली। इसी वक्त उसने शायद अपने अक्कम में आवाजें महसूस की और जल्दी से पलट कर देखा, फिर लपक कर अपना अख्तारा उठा लिया। ले जा, ले जा, इसे भी ले जा भाई, यही एक पूंजी रह गई है, इससे भी छीन ले, तुम्हारा सत्यानाश। साधु ने जले कटे लहजे में कहा, नहीं महाराज, हम चोर नहीं हैं, हम तो स्वामी सुखराज हैं, मंदिर में भजन गाते हैं, खरे ब्राह्मण हैं, भगवान की सौगंध, हमने जीवन में कभी किसी की कोई चीज नहीं चुराई। गवैये हो, भजन गाते हो? साधु ने खुश होकर पूछा। हाँ महाराज, सुखराज ने कहा। साधु गौर से उसे देखने लगा, फिर उसने अख्तारा उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये बात है तो फिर
कोई भजन सुनाओ। जो आ गया महाराज, सुखराज ने कहा और अख्तारा ले लिया। सुखराज की आवाज वाकई खूबसूरत थी। जो कुछ वो गा रहा था वो बेहद हसीन था। साधु मस्त हो गया और गर्दन पटकने लगा। फिर जब स्वामी सुखराज खामोश हो गए तो उसने झूमते हुए कहा, खूब गाते हो सुखराज, भगवान के सौगंध खूब गाते हो। हम यहाँ स्थान करेंगे। सितारों ने शायद इसी बस्ती के बारे में हमें बताया था। क्या बताया था महाराज? सुखराज ने पूछा। नाम तुम्हारा सुखराज है, ज्योतिष से तुम्हें लगाव है, बड़ा लगाव है महाराज, वही सीखना चाहता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें ज्ञान देंगे, तुम्हें ज्योतिष शक्ति देंगे। राधे शंकर, राधे श्याम। चलो, तुम्हारा घर कहाँ है? नदी के उस पार बस्ती में महाराज। आओ फिर हमारे स्थान का बंदोबस्त करो, आओ। साधु महाराज उठ खड़े हुए। तब उसकी निगाह मुझ पर पड़ी। ये कौन है? कोई मुसाफिर है महाराज, नदी किनारे आराम कर रहा था। साधु मालूम होता है, मगर जवान है, खूबसूरत भी है। अभी ज्ञान कहाँ होगा, तुमसे कोई संबंध है? नहीं महाराज, आपके धोखे में इसके पास पहुंच गया था। मैं पूरन जाप कर रहा था आपके लिए महाराज, ज्योतिष सीखना चाहता था। हम तुझे ज्योतिष विद्या सिखाएंगे। सुखराज तू चिंता मत कर, हमारे साथ आ। साधु महाराज चल पड़े। मैं अब भला इन लोगों का पीछा कहाँ तक छोड़ सकता था। चुनाचे मैं भी दोनों के साथ आगे बढ़ गया। दरिया के किनारे पहुंचकर महाराज रुके। फिर सुखराज को देखकर बोले, क्या यहाँ पानी का उतार है? हाँ महाराज, इस ओर जाने का यही रास्ता है, तो आगे चल। साधु महाराज ने कहा और सुखराज पानी में उतर गया। उसके आगे बढ़ने के बाद महाराज ने पानी में कदम रखा और जल्दी से बाहर निकल आए। रुक जा सुखराज, रुक जा, पानी तो बहुत ठंडा है। ज्ञान ज्योत जगाओ महाराज, साधु संतों के लिए ठंडा गर्म क्या हैसियत रखता है। आ जाओ, सुखराज ने अकीदत से कहा। और नाचार साधु महाराज भी पानी में उतर गए। मैं बदस्तूर इन दोनों के पीछे था। साधु महाराज की हालत काफी खराब थी। पानी कमर कमर तक पहुंच गया था और ये नदी किसी पहाड़ी आबशार ने तश्कील दी थी, इसलिए पिघली हुई बर्फ तो ठंडी ही होती है। दूसरे किनारे पर पहुंचकर महाराज थर थर कांप रहे थे। इनके होंठ नीले पड़ गए थे और मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन सुखराज आराम से आगे बढ़ रहा था। खेतों से परे एक छोटी सी झोपड़ी सुखराज का मकान थी। उसके आगे गोबर और मिट्टी की दीवारें उठी हुई थी और इन दीवारों के बाद चंद दरख्त थे जिनके नीचे घास बिखरी हुई थी। बरगद का एक बड़ा दरख्त झोपड़ी से थोड़े फासले पर था। सुखराज ने कई बार बेचैन निगाहों से मुझे देखा था, लेकिन कुछ बोला नहीं था। दोनों इस झोपड़ी में दाखिल हो गए। मुझे हंसी आ रही थी। हालांकि स्वामी सुखराज खुद सलीके का आदमी मालूम होता था, लेकिन उसकी तलब ने उसे भटका दिया था और वो खामखा के लोगों के चक्कर में पड़ रहा था। अब ये साधु महाराज मुझे कोई निकम्मे आदमी मालूम हो रहे थे, लेकिन सुखराज उनके सामने बिछा जा रहा था। वैसे ठंडे पानी ने साधु महाराज की हालत बुरी करनी थी।